السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹیچ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اردو ٹیچ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آج کا ہمارا ویڈیو ہے کلاس 9th اینڈ 10th اینڈ بہار بورڈ 10th 11 12۔ اس ویڈیو میں گرامر پڑھیں گے، اسم یعنی ناؤن۔ درجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے۔ حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہے۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تین لڑکے لال قلعہ دیکھ رہے ہیں، شاہجہاں، قطب مینار۔ آپ نے دیکھا اس عبارت کے پہلے جملے میں 5 نام آئے ہیں: حامد، شاہد اور موہن۔ اشخاص شخص کی جمع ہے، اشخاص کے نام ہیں، جبکہ دہلی اور لال قلعہ جگہ کے نام ہیں۔ ان کے علاوہ پتھر اور ٹکٹ بھی کسی چیز کے نام ہیں۔ آخری جملے میں خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، حالت کا نام ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی عبارت میں حامد، شاہد اور موہن تینوں لڑکوں کہا گیا ہے۔ اسی طرح لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانے قلعے کے لیے عمارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ حامد، شاہد، موہن لال قلعہ، موتی مسجد، دہلی لڑکوں، عمارتوں اور جگہ کے خاص نام ہیں۔ حامد، شاہد یا موہن کے نام سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اسی طرح ہر قلعہ، ہر شہر اور ہر مسجد کو نہ تو لال قلعہ کہا جا سکتا ہے، نہ موتی مسجد، نہ دہلی۔ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام، خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 2 میں سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا، سچن تندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چوتھا، رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
नंबर 5, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्न मरियम भी कहा जाता है, मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा। इन जुमलों में सरोजिनी नायडू के लिए बुलबुले हिंद और सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम उनके लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। लक़ब इसमें ख़ास की एक किस्म है। वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। उसकी मज़ीद मिसाल ये है, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को कहते हैं। इसी तरह से हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल को कहते हैं। शायर इनकलाब जोश को बोलते हैं। खुदाए सुख्र मीर तकी मीर को बोलते हैं। मुसव्विरे गम राशिदुल खैरी को बोलते हैं वगैरह। खिताब भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए, अच्छे काम के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। मसलन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, खान बहादुर, शमसुल उलमा। तखल्लुस भी इसमें ख़ास की एक ख़ास किस्म है। अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वह अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। उसे तखल्लुस भी कहते हैं और उसे कलमी नाम भी कहते हैं। इसी तरह के नाम को तखल्लुस भी कहते हैं और कलमी नाम भी कहते हैं। जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस क्या है? दर्द है। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या? ज़ौक़ है। और अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस हाली है। आपने ऊपर लिखे हुए जुमले में इब्ने मरियम पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा के नाम की मुनासबत से इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। वतन, माँ, बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुन्नियत कहते हैं। वतन इसमें ख़ास की एक किस्म है। इसमें ख़ास की तरह इसमें आम की भी किस्में हैं। उन किस्मों को समझने के लिए दी हुई इबारत को आप समझें। हामिद ने अपनी बेटी से लोटा मांगा। हामिद ने अपनी बेटी से लोटा मांगा, वह लोटियां ले आई। दादी ने हामिदा से कहा कि नन्हे के सामने कटोरा, कटोरी और घंटी रख दो, वह खेलता रहेगा। उसके आगे चाकू, कलम और कंघा रखा है, उन चीज़ों को उठा लो। दादा ने नन्हे को बहलाने के लिए मियाऊं मियाऊं, गुटुरगू और कुकड़ू वगैरह की आवाज़ें निकाली। दादी ने हामिदा से पूछा, दोपहर हो गई, ज़ैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई, वह सुबह से भूखी प्यासी होगी। अब इस तस्वीर को आप देखिए। कटोरा, कटोरी। कटोरा क्या है? बड़ा है और इस कटोरा से ये छोटा है तो इसे क्या कहते हैं? कटोरी कहते हैं। इस तरह से ये लोटा बड़ा है और लोटा का छोटा क्या होगा? लोटिया होगा।
ये संदूक बड़ा है और इसका छोटा क्या होगा, संदूकचा होगा। इस इबारत में आपने कई चीजों के नाम पढ़े, जैसे लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, चाकू, कलम, म्याऊं म्याऊं, दोपहर, सुबह, स्कूल, घर वगैरह। ये सब इसमें आम है, लेकिन अपनी खुसूसियत के एतबार से उनकी अलग अलग किस्में हैं। वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे लोटिया से लोटा, पतीली से पतीला, कटोरी से कटोरा, घंटी से घंटा। वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे, वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे, उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे संदूक से संदूकचा, बाग से बागीचा, किताब से किताबचा वगैरह। वह लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं। वह लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, कलम, तलवार, पेचकस, हथौड़ा, छेनी और कंघा वगैरह। वह लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे, वह लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे, उसे इसमें सौत कहते हैं। सौत के माने आवाज़ क्या आते हैं। इसम के माने आप जानते ही नौन है। जैसे म्याऊं म्याऊं, कुकड़ूकू, टर टर, गुटुरगू, चू चू, खटखट, छन छन वगैरह। वह लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे, वह लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे, उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे घर, कुतुबखाना, चौराहा, स्कूल, सुबह, दोपहर वगैरह। वह लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो, वह लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो, वह लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो, उसे इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुबखाना वगैरह। वह लफ्ज़ जिससे वक्त का पता चले, वह लफ्ज़ जिससे वक्त का पता चले, उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों वगैरह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल इकरा उर्दू टीच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।